also I want to thank Brother Charanjit for the coordination work he has done. और मैं भाई चरणजीत का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो भी वो इस काम में सहायता करते हैं। And about Pastor Daniel George. और मैं पास्टर डैनियल जॉर्ज के बारे में कहता हूँ। Pastor Daniel George is a very committed pastor. और ये बहुत ही समर्पण किए हुए खुदा के दास हैं। So when I was in Bahrain, many times I have been part of his church. और जब मैं पहले बहरीन में था, मैं बहुत बार इनकी कलीसिया का हिस्सा हुआ हूँ। And always I have seen that Brother Daniel George, Pastor Daniel George will take that step to bring me to Bahrain. और मैं जब भी देखता हूँ और मुझे वो हर बार वो कोशिश करते रहे, एक कदम उठाते रहे कि कैसे मुझे यहाँ बहरीन पर लेकर आए। So Pastor, the Lord will bless you with breakthrough. और पास्टर, प्रभु आपको छुटकारे से आशीष देने जा रहा है। Because when you are bringing me here, जब आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, you are also inviting the ministry of Yeshua in deliverance. और आपने प्रभु यीशुआ की सेवकाई जो छुटकारे की है उसको भी बुलाया है। So can I know who are those people who is seeing me for the first time? और मैं जान सकता हूँ कि आप में से कौन से भाई हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? You have seen before. No, I saw. Okay, fine. So hallelujah. Hallelujah. So we are going to study something in. You can play the keys. So it is going to be a teaching ministry also. ये एक टीचिंग सेवकाई में जाने वाली है। शिक्षा के सेवकाई है। शिक्षा की सेवकाई। So we will be looking at certain things about the word of God. हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन से हैं। Come on, let's all close our eyes. आइए सब अपनी आंखें बंद कीजिए। Father Lord, speak to us. प्रभु पिता हमसे बात करें। Lord, let your name be glorified in our lives. हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। Lord, let your name be glorified through your word. प्रभु आपके वचन के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। In the matchless name of Yeshua we pray. Amen. प्रभु यीशुआ के तुल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. Now I am going to give you some basic understanding of Bible. मैं आपको अभी बाइबल की कुछ शुरुआती जानकारी देना चाहता हूँ About the ministry of deliverance. और जो कि छुटकारे की सेवकाई के लिए है। What is deliverance? छुटकारा क्या है? What is deliverance? छुटकारा क्या है? Deliverance is a release from a prison. छुटकारा एक गुलामी से, एक कैद से आजादी का मतलब है। देखो बहरीन का anybody who don't understand English or understand Hindi कोई है? कोई यहाँ पर है जो इंग्लिश और हिंदी नहीं समझ पाता? English if you don't understand पूरा हिंदी है ना? पूरा हिंदी। Maybe I'll go into channel because I don't want to आप में से कोई है जिसको हिंदी समझ नहीं आती कि उनको इंग्लिश चाहिए? तो वो नहीं चाहते कि समा खराब हो तो वो। Okay, fine. So you see, many times in our lives, हमारे जीवन में बहुत बार we struggle a lot. बहुत संघर्ष करते हैं। We always come to the Lord हम प्रभु के पास आते हैं, and we pray to God. हम प्रार्थना करते हैं, Lord, please, Lord, help me. और हम कहते हैं प्रभु मेरी सहायता कर, Lord, please bless me. प्रभु मुझे आशीष कर। Many times we find that we go through struggle. हम बहुत बार देखते हैं कि हम बहुत सारे संघर्ष में हैं। You have to understand something about the Bible. आपको एक बाइबल के बारे में कुछ बात को जानना है। When you are called of God, जब आप खुदा की बुलाहट में हैं, God wants to bless you and use you mightily. और प्रभु उस समय चाहते हैं आपको आशीष करना और इस्तेमाल करना। But there is an enemy which is written in the Bible. His name is Satan. और एक हमारा विरोधी है, दुश्मन है, जिसका नाम बाइबल में शैतान लिखा है। And if we are not aware of his works, many times we will be caught in problems. अगर हम उसके कामों को नहीं जान पाएंगे तो हम उसमें पकड़े जाएंगे। See, that is what many people, they are not bothered or they don't understand about how
demons operate. और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके जीवन में शैतान कैसे काम कर रहा है। And what is the plan of Satan? और शैतान की क्या योजना है? You will turn into enemies of God. और वो ऐसा आपको बनाएगा कि आप परमेश्वर के दुश्मन हो जाएं। अभी से मैं कलीसिया में नहीं जाएगा, इतना मैंने प्रार्थना किया, क्या हुआ मेरी जिंदगी में, नहीं जाएगा। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम क्या सोचता है कि परमेश्वर की वजह से ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली नहीं है। वन साइड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ गॉड, जब हम खुदा के बारे में जानते हैं, बट अदर साइड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट गॉड्स एनिमी। और उसी समय आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर के विरोध में है। In the book of 1 Peter chapter 5 verses 8, read that. पहला पतरस 5 अध्याय का 8 वचन। पहला पतरस 5 अध्याय का 8 वचन। सुचेत होवो, जागते रहो। उर्दू है, उर्दू। हाँ, read. सुचेत होवो, हाँ। जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारा विरोधी शैतान, देखा उसके लिए क्या बोल रहा है, सुचेत रहो। उसका मतलब क्या है, चौकस रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। तो हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, पिता है, पर तुम्हारा विरोधी कौन है? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आप रात में सोता है ना, अब आपका घर का दरवाजा बंद करता है या नहीं? है या नहीं? हाँ? क्यों? कोई दूसरा ना कोई दूसरा आपको अंदर विश्वास इतना ज्यादा है ना, क्यों बंद करता है? क्योंकि आपको पता है कि विरोधी है। पर क्रिश्चियन लोग क्यों इतना मूर्ख हो जाता है भाई? बहुत टाइम हम विश्वास के बारे में कहता है, हमको दरवाजा बंद करना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा घर में बैठता है दरवाजा खोल के, मेरे स्वर्गदूत चारों ओर है तो इसलिए मैं दरवाजा खोल के। तो इसलिए आप विश्वास में क्या होना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। एक साइड से आशीष आता है, दूसरे साइड से विरोधी भी है। When we don't take seriously the matter of the enemy, we go into attack. और जब हम अपने विरोधी की उसको गंभीरता से उसकी चालों को नहीं लेंगे, तो उस समय हम उसके हमले में आ जाते हैं। I did not say you have to be afraid of devil. मैं ये नहीं कहता कि आप शैतान से डरें। क्या क्या कहता है, तुम्हारा घर का दरवाजा बंद करना सीखो। एक छोटा सा बात है, तो क्या करता है, हम सोचता है तो मैं विश्वासी हूं ना, मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत सारे विश्वास से भरा हूं, मैं मेरे अंदर बहुत आग है। तो प्रॉब्लम आता है गैर। सो डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। अपने जीवन में ज्यादा, और ओवर कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, क्या बताओ? ओवर कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? ज्यादा एडवांस, ज्यादा भरोसा करना, बहुत ज्यादा भरोसा। अपने ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करना। ऐसा मत करना, क्योंकि ये जिंदगी है। इसलिए हमको प्रभु में विश्वास करना है, और वो समय हमको चौकस भी रहना है। यू हैव टू बिलीव इन गॉड, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल आल्सो। आपको प्रभु पे भरोसा करना है, उसी समय आपको चौकस भी रहना है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। एक जिंदगी में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस। एक साइड में दरवाजा बंद करो, दूसरा साइड में प्रार्थना में जाते रहो। प्रार्थना में गया, दरवाजा बंद नहीं किया, क्या फायदा? बहुत लोग ऐसा है ना, घर के सामने का दरवाजा बंद करता है, पीछे का दरवाजा जोड़ देता है, क्या फायदा? चोर पीछे से भी
तो क्रिश्चियन लाइफ ऐसा है, क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक दिस। एक मसीही जीवन ऐसा है, आपको सीरियस होना चाहिए, आपको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु का आशीष प्रभु देना चाहता है, आपका जीवन में प्रभु उद्धार देना चाहता है, आपको आगे लेके जाना चाहता है, पर दरवाजा बंद करना आपका काम। चोर को पता चला कि आपके घर में खसाना है, आपके घर में सोना है, चांदी है, क्या करेगा? घुस जाएगा। प्रभु आशीष देता है पर चोर चोरी करता है, तो हम ब्लेम किसके ऊपर डालता है? प्रभु। प्रभु बोला रे दरवाजा तू क्यों बंद नहीं? हम बहुत समय प्रभु के ऊपर ही दोष डालते हैं। आज ये सीख लो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोई दरवाजा है जहां से दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, प्रभु आज वो दुष्ट आत्मा को मेरे घर से निकाल के वो दरवाजा बंद करने के लिए मुझे सिखाओ। हालेलुया। So now we are going to look at the word of God. अब हम वचन को देखते हैं। We are going to look at the 4 areas where demons can operate. हम 4 जगह देखेंगे यहाँ पर शैतान काम कर सकता है। Hallelujah. 4 area. Let us go into the word of God. वचन में चलते हैं। In the book of Luke, chapter 8, verses 26. लूका की किताब 8 का 26। See, you all know this story, but we are going to go into the details of the story. आप सबको इस कहानी के बारे में पता है, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे। छुपा हुआ बातें हम देखने वाला है ये वचन से। Okay. Can you read? और यीशु ने देख के चीख मारी। 8 to 26. 26 8 का 26। ਉਹ ਗਸੇਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ. ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੱਕਰਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸਨ। हाँ.